Hello, welcome back once again in Basic Electronics practical session. So in our last practical session, we have seen the performance of BJT in common emitter configuration. Today we are going to see the experiment number 23. It is the test the performance of BJT working on common base mode. So today we are going to see the practical of BJT in common base configuration. So this is the experiment number 23 of your manual. So today we are going to see the characteristic, input characteristic and output characteristic of common base configuration. So as you know, I have already explained you in the theory session, the input characteristic of common base configuration is the characteristic which is plotted between input voltage versus input current. So what is input voltage and what is input current in common base configuration? So if you remember, so I have already explained you this configuration in a theory part. So this is a transistor in which mode? Common base configuration mode. Means what? Base terminal is common to emitter and collector. Base is kept common between the two terminal, that is emitter and collector. The emitter terminal is input terminal, the collector terminal is output terminal. So what is the input voltage, input current of this configuration? The input voltage is VBE, or you can also say VEB, and the input current is emitter current IE. The output current of this configuration is IC, collector current, and the output voltage is VCB, or you can also say VBC. So by looking this configuration, these all are the input voltages and input current of this configuration. And what is the input characteristic of this configuration? It is the graph which is plotted between input voltage VBE versus input current IE by keeping constant output voltage. Means output voltage is kept constant and we are taking the graph between input voltage versus input current. Now what we have observed in this configuration is that when VCB is 0, means at lower voltage, you are getting some current value of emitter current. As you go on increasing the VCB value, for example, if you increase the VCB to 5 volt, then what you will observe, this emitter current will flow early. So this effect is known as what? Early effect, which I have explained you in the theory part. So this is the theory part. Already I have told you, explained you this emitter current value you will get at some early stage as compared to the last VCB. If you go on increasing the VCB value, you will get this emitter current at some early value, and this phenomena, this effect is known as what? Early effect. This phenomena, this effect is known as what? Early effect. So the same thing it is also given in your manual also. So the manual is also saying that concept only. The input characteristic of common base configuration is a graph of input voltage VBE versus input current IE by keeping the output voltage VCB constant. If you observe properly, this VCB2 is greater than VCB1. So as you go on increasing the VCB value, as you go on increasing this VCB value, you will get the emitter current at some early value. So this effect is already, I have told you, this effect is known as what? Early effect. This is VCB1, this VCB2. What you are observing, this VCB2 is greater than VCB1. Means VCB2 voltage is greater than VCB1. If you increase the value of this VCB, you will get the emitter current at some early stage only. As compared to this stage, you are getting this emitter current at some early stage. So this effect, this phenomenon is known as what? Early effect. तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. तो हम लोग को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यही प्लॉट करना है. हमारे को प्रैक्टिकल में यही चीज़ दिया हुआ है. दिस इज द प्रैक्टिकल सेटअप. ये प्रैक्टिकल सेटअप है आपका किसका? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का. इनपुट वोल्टेज VEB है, इनपुट करंट I है, आउटपुट करंट IC है, आउटपुट वोल्टेज VCB है. तो हम लोग को जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है तो VCB को कांस्टेंट रखना है और ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट में करेंगे. और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में प्लॉट होगा? VCB वर्सेस IC बाय कीपिंग I कांस्टेंट. I को कांस्टेंट रख के हम लोग इन दो के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे. तो ऑब्जर्वेशन में क्या दिया हुआ है, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोग को, प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग को ऑब्जर्वेशन को फॉलो करना है. पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात चलेगी. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में तो सबसे पहले यही बोला कि कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर 3. तो आपको सर्किट कनेक्ट करना है जैसा फिगर में दिया हुआ है.
फिर उसके बाद क्या बोला है, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज वीसीबी टू 0 वोल्ट बाय बेयरिंग वीसीसी। तो सबसे पहले आप वीसीबी को 0 वोल्ट पे रखो और फिर क्या वेरी करो, वीईबी इनपुट वोल्टेज को वेरी करो 0.1 के स्टेप में। कहां से कहां तक का, 0 to 1 वोल्ट के स्टेप। 0 to 1 वोल्ट में बीच में आपको वेरी करना है इन स्टेप ऑफ 0.1। और क्या नोट डाउन करना है आपको, इमीटर करंट की वैल्यू नोट डाउन करना है। और सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है किसके लिए, वीसीबी 4 वोल्ट के लिए। तो ये दो चीज के लिए आपको करना है, पहले वीसीबी को 0 रखो, फिर बाद में वीसीबी को 4 रखो और नोट डाउन करो इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज को वेरी करना है 0 से 1 वोल्ट के बीच में इन स्टेप ऑफ 0.1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ये ग्राफ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ये टेबल आपको नजर आएगा। वीसीबी आउटपुट वोल्टेज को पहले 0 वोल्ट पे रखो और क्या चीज को वेरी करो, वीईबी को वेरी करो, 0.1 से लेके 1 वोल्ट तक का वेरी करो। और फिर यहाँ पे वही चीज वीसीबी को 4 वोल्ट करो और वीईबी वर्सेस आई को ऑब्जर्व करो और देखो जरा कि आपको वो चीज ऑब्जर्व होती है क्या जो अर्ली इफेक्ट का फेनोमेनन है। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्चुअल लैब साइट से ही परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाके। तो फिलहाल अभी ऑब्जर्व करते हैं क्या वो चीज़ हम लोग को प्रैक्टिकली इसमें सिमुलेशन में ऑब्जर्व होती है कि नहीं होती। कल हम लोग ने कॉमन इमीटर का तो किए थे, तो उसमें ऐसा इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। क्या वो सेम चीज़ इसमें भी रिपीट होती है क्या, आई डोंट नो। इधर पे इनके सिमुलेशन में वो चीज़ पार्ट इन लोग ने अर्ली इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इधर पे शो नहीं हो पाया, रिप्रेजेंट नहीं हो पाया। तो नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर बीजेडी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो बीजेडी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएंगे, सिमुलेशन में जाएंगे और कहाँ पे जाना है आपको, अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ प्लॉट करना है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के सिमुलेशन में जाना है। तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका सिमुलेशन है किसका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। ये फिगर जो आपको प्रैक्टिकली माउंट करना है, ब्रेडबोर्ड पे माउंट करना था, उसका सिमुलेशन आपको वर्चुअल लैब साइड में एक्जैक्टली वैसी दिखाई देगा। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो सेटअप आपको करना है वो सेम सेटअप अब आपको इधर पे नजर आएगा, यहाँ पे आपको सेटअप में नजर आएगा। इनपुट वोल्टेज वीईबी, इनपुट करंट आईई, आउटपुट करंट आईसी, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये बैटरी सप्लाई, आउटपुट बैटरी सप्लाई को वेरी करना है तो यहाँ से आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा और यहाँ से आप इनपुट सप्लाई चेंज करोगे, इनपुट बैटरी का सप्लाई चेंज करोगे तो इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट चेंज होगा। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आउटपुट को कांस्टेंट रखना है। अब आउटपुट को कितने पे कांस्टेंट रखना है, पहले तो बोला गया 0 वोल्ट पे। तो हालांकि 0 वोल्ट होता है कि नहीं होता है पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। मिनिमम वोल्टेज कितना होता है, सो मिनिमम वोल्टेज इज नॉट 0 वोल्ट, मिनिमम वोल्टेज इज 0.1 वोल्ट जैसा आपको दिख रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यही काम करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसको VCE को 0.1 वोल्ट का रख के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, VEB वर्सेस आई को। तो यहाँ पे स्टेप में वेरी करना है, 0.11 के स्टेप में वेरी करते रहना है। तो पहले 0.1 का स्टेप करते हैं, 0.1। तो 0.1 में क्या आता है वो ऑब्जर्व करना है। ओके, ये 0.1 हो गया। 0. VBE, तो 0.1 VEB पे आपको इमीटर करंट कितना मिल रहा है, 0.85 मिली एम्पियर। ये टेबल में ले लो आप अपनी वैल्यू को, इसी तरीके से इंक्रीज करो। अब आप 0.1 से 0.1 के स्टेप में वेरी करो, इसको 0.2 पे लेके आओ। 0.2 पे लेके आया, करंट की वैल्यू कितनी हो गई आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.98 मिली एम्पियर। इंक्रीज हो रही है वैल्यू, आप धीरे धीरे इंक्रीज करते रहोगे, आपको वैल्यू मैं अभी डायरेक्टली लेके आता हूँ 0.5 पे, 0.5 पे। और फिर लास्ट रीडिंग पे लेंगे हम लोग 0.7 फॉर 0.1। जीरो पॉइंट फाइव पे आपका कितना करंट हो गया, 1.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 0.7 ले लेते हैं। जीरो 0.72 मिली एम्पियर। लास्ट वैल्यू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पे कितना आया, 3.1 मिली एम्पियर। इफ यू ऑब्जर्व दिस टेबल, तो ये आपका टेबल ऑब्जर्व हो रहा है आपको 0.1 VCB को कांस्टेंट रख के आपने ग्राफ प्लॉट किया है। किसका प्लॉट किया है, VEB वर्सेस आई।
So VEB 0.1, 0.85 मिली एम्पियर, 0.2, 0.98 मिली एम्पियर, 0.7 पे 2 मिली एम्पियर, 1 पे 3.1 मिली एम्पियर। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ में इस तरीके से ऑब्जर्व होगा, जो हम लोग थियरी पार्ट में भी ऑब्जर्व किए इन अवर थियरी सेशन ऑल्सो, जो आपको ग्राफ नज़र आएगा इसी तरीके से इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। आपका मैनुअल में इसका जो ग्राफ दिया हुआ है वो हिसाब से ही आपको इधर पे भी समझ में आएगा। सो इन योर मैनुअल the graph of input characteristic it is given to you also for different VCB। तो यहाँ पे भी आपको मैनुअल में नजर आएगा ये VEB वर्सेस I का ग्राफ जो है वो अलग अलग VCB पे थोड़ा सा I की वैल्यू अलग होती है। तो क्या ये सिमुलेशन में ऑब्जर्व होता है क्या, वो चीज़ अभी हम लोग को ऑब्जर्व करना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा अब अपना पहला वोल्टेज को कम करूँगा, VEB को कम कर देता हूँ और यहाँ पे अभी VCB को बढ़ा देता हूँ। VCB को कितने पे लेके आता हूँ, जैसा कि आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में कहा गया है 0 वोल्ट के बाद में आपको कितना लेना है, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी इसको कितने पे लेता हूँ, 4 वोल्ट करता हूँ। डायरेक्टली आई एम इंक्रीजिंग योर VCB टू 4 वोल्ट। ओके, सो आई हैव केप्ट VCB टू 4 वोल्ट। अब मुझे वही चीज को ऑब्जर्व करना है, इनपुट वोल्टेज VBE 0.1 के स्टेप में वेरी करते करते देखना है कि क्या करंट की वैल्यू में कुछ चेंजेस मिलता है। तो 0.1 वोल्ट किया है मैंने, सेम 0.1 पे सेम करंट मिल रहा है 0.85 मिली एम्पियर, VCB 4 वोल्ट करके भी नो इफेक्ट। 0.2 सेम रीडिंग 0.98 मींस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाता है आउटपुट वोल्टेज का। डायरेक्टली अभी 0.5 वोल्ट करता हूं। अगेन 0.5 1.5 मिली एम्पियर ही ओनली। Zero point seven 2 milliampere means what you are observing the same reading you are observing। आपने VCB को चेंज भी किया तो भी यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है, कोई चेंज नजर नहीं दिखा रहा है इधर पे। द सेम ग्राफ इज रिपीटिंग, द सेम ग्राफ इज रिपीटिंग फॉर VCB 0 वोल्ट, फॉर VCB 4 वोल्ट। हालांकि हम लोग ने अपने थ्योरी पार्टिकल में यहाँ पे मैनुअल में भी आपको यही दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आप VCB की वैल्यू को इंक्रीज करोगे व्हाट यू आर विल ऑब्जर्व, आपको ये जो इमीटर करंट है वो जल्दी मिलेगा, जल्दी ऑब्जर्व होगा, ये अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। हालांकि आपके ये सिमुलेशन में यहाँ पे वो चीज़ वर्क प्रॉपरली करके नहीं दिखा रहा है। अब जो भी है ये सिमुलेशन है, तो सिमुलेशन में इन्होंने जो भी हिसाब से किया होगा, रन किया होगा, तो यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज का कुछ इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। आप चेंज करोगे VCB की वैल्यू पे ही तो आपको सेम ही चीज़ ऑब्जर्व हो रही है। जो करंट आपको 0 वोल्ट पे था, 0.1 वोल्ट पे था, वो सेम वैल्यू आपको 4 वोल्ट पे भी नजर आ रही है। तो मीन्स व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेशन यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व प्रॉपरली द चेंजेस ऑफ चेंजिंग दिस पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज VCB ऑन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, हालांकि हम लोग ने थियरी पार्टिकल में, हम लोग ने थियरी पार्ट में हम लोग ने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया और मैनुअल में भी आपको दिया हुआ है। मैनुअल में भी आपको शो करके दिखा रहा है कि आपको चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, इमीटर करंट आपको जल्दी मिलेगा अर्ली इफेक्ट का कॉन्सेप्ट से। ओके, नो प्रॉब्लम। हो सकता है ये आपका सिमुलेशन में है, जो उन्होंने जो हिसाब से बनाया होगा वो हिसाब से आपको इधर पे ऑब्जर्व हो रहा है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, क्या चीज़ देखना है अभी हम लोग को, इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी देखना है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCB वर्सेस आउटपुट करंट IC। और कौन सी चीज़ को कांस्टेंट रखना है, इमीटर करंट को कांस्टेंट रखना है। अब जब इमीटर करंट को आप धीरे धीरे वेरी करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपको आउटपुट के कलेक्टर करंट में भी इंक्रीज मिलेगा। ये सेम चीज़ हम लोग ने कल उसमें भी किए थे, लास्ट प्रैक्टिकल में भी किए थे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। वो चीज़ प्रॉपरली हम लोग को रिप्रेजेंट हुई थी, नजर आई थी।
अब सेम चीज हम लोग को यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी देखना है, क्या अगर हम लोग इमीटर करंट को वेरी करेंगे तो हम लोग को क्या इधर पे आउटपुट के कलेक्टर करंट में चेंजेस मिलेगा, ऑब्जर्व होगा, या जितना इमीटर करंट देते हैं उतना ही आपको कलेक्टर करंट मिलेगा। सेम चीज जरा क्या होती है ये प्रॉपरली अभी हम लोग को ये ग्राफ भी हम लोग को प्लॉट करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ में जाएंगे। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सी चीज को कांस्टेंट रखना है, इमीटर करंट को। तो इमीटर करंट को कांस्टेंट रखना है। पहले आपको इमीटर करंट कितने पे रखने के लिए कहा गया है, कितने पे बोला गया है, हम लोग पहले इसका भी प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर गिवन ओवर हियर। तो प्रोसीजर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे पहले बोला है कीप द इनपुट करंट आई 0 मिली एम्पियर बाय वेरिंग वी, फिर वेरी वीसीबी इन स्टेप ऑफ 1 वोल्ट टू 1 वोल्ट के स्टेप में वेरी करना है 1 वोल्ट टू 10 वोल्ट के बीच में, और फिर इसी के बाद सेम प्रोसीजर रिपीट करना है आई को 10 मिली एम्पियर करके। तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में खाली दो ही रीडिंग के लिए बोला गया है, एक आई को आप 0 मिली एम्पियर देके करो और एक आई को 10 मिली एम्पियर करके देखो, और फिर ग्राफ को प्लॉट करो आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी चलते हैं। हमारे यहाँ पे सिमुलेशन में क्या दिया हुआ है, मिनिमम करंट कितना है आई का वो पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको वेरी करूंगा तो मुझे इमीटर करंट मिलेगा। तो मिनिमम इमीटर करंट कितना है वो अभी हम लोग को मालूम पड़ेगा। सो मिनिमम इमीटर करंट यहाँ पे कितना है, 0.76 मिली एम्पियर। तो जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं हो सकता। मिनिमम 1 ओम के उसके हिसाब से वेरी करने पे यहाँ पे कितना दिखा रहा है 0.76। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको फॉर एग्जाम्पल इसको 1 मिली एम्पियर कर देते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग 1 मिली एम्पियर के हिसाब से पहले देखेंगे, फिर इसी के बाद इमीटर करंट को वेरी करेंगे 10 मिली एम्पियर के लिए। तो 1 मिली एम्पियर पे क्या रीडिंग आती है, फिर उसी के बाद इमीटर करंट को कैप करेंगे, बढ़ा देंगे 10 मिली एम्पियर पे करेंगे और दोनों का रीडिंग नोट डाउन करेंगे, वीसीबी और आईसी का। तो वीसीबी की जो रीडिंग स्टार्ट करना है वो 1 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट के बीच में करना है। तो यहाँ से आप वेरी करो, पहले 1 वोल्ट पे लेके आओ, पहले 1 वोल्ट पे कितना आता है आपका वो लिखो, फिर उसी तरीके से 1 के स्टेप में आपको वेरी करना है और रीडिंग को नोट डाउन करना है। ओके, सो 1.060 हो रहा है मिनिमम, 1 वोल्ट पे एग्जैक्टली नहीं जा रहा है ये, 0.96 के बाद 1.160 ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको टेबल में आप ले लो 1.160, इसके बाद वेरी करो 2.160, वेरी करो 5.060, और लास्ट हम लोग यहाँ पे वेरी करते हैं इसको कितने पे लेके आते हैं, 10 पे लेके आते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो कितना है यहाँ पे दिखा रहा है 9.760। ओके, तो ये हम लोगों ने 1 मिली एम्पियर के हिसाब से क्या किए हैं, वीसीबी आउटपुट वोल्टेज को वेरी करके आउटपुट करंट की रीडिंग को नोट डाउन किए। आफ्टर कुछ पॉइंट के बाद ये देखो आपको करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग ने थियोरी में पढ़े हैं, इनिशियली इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आउटपुट आपका करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको ग्राफ में लेंगे तो आपको ये प्रॉपर्ली वैसे ही ऑब्जर्व होगा, जैसा आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में नजर आ रहा था वैसे ही कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है। इसका आपका थियरी में भी हम लोग ने यही पढ़े हैं, यही अंडरस्टैंड किए कि पहले सडनली क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर आफ्टर डेट पॉइंट वो आपका क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 1 मिली एम्पियर के हिसाब से आपका देखो आउटपुट करंट भी कितना मिल रहा है, 1 मिली एम्पियर ही मिल रहा है। तो जो आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में भी दिया हुआ है सेम चीज आपको इधर पे मिल रहा है। वो बीटा की वजह से एम्पलीफाई होता था किसमें, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, और ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 10 मिली एम्पियर दे रहे हैं तो 10 मिली एम्पियर का ही आउटपुट मिल रहा है। तो 1 मिली एम्पियर दे रहे हैं तो आउटपुट में कितना मिल रहा है, 1 मिली एम्पियर ही मिल रहा है। अभी यही चीज हम लोग अगर इमीटर करंट को 10 मिली एम्पियर पे करेंगे तो आपको इधर पे भी कितना मिलेगा, 10 मिली एम्पियर का ही आउटपुट मिलेगा। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये जो आपका इमीटर करंट है, इनपुट का इमीटर करंट, अब इसको 1 वोल्ट से है, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, कितने पे कर देता हूँ, 10 मिली एम्पियर पे कर देता हूँ। तो बाय इंक्रीजिंग दिस रियोस्टेट मैं इसको 1 मिली एम्पियर से लेके आता हूँ कितने पे, 10 मिली एम्पियर पे। नाउ आपका इमीटर करंट कितना हो गया है, 10 मिली एम्पियर का हो गया है। अब 10 मिली एम्पियर के हिसाब से आप वेरी करो
आउटपुट वोल्टेज और रीडिंग नोट डाउन करो आउटपुट कलेक्टर करंट का। तो यहाँ से मैं वेरी करूंगा, पहले मैंने किसके लिए लिया था, 1 वोल्ट के लिए लिया था, तो यहाँ से मैं पहले 1 वोल्ट पे लेके आता हूँ, या आउटपुट वोल्टेज आपका 1 वोल्ट पे लेके आओ। ओके, या तो 0.9600 होता है या तो 1.160 होता है, जो हम लोग ने पहले भी ऑब्जर्व किए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वही एक नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता हूँ, 1.160 पे लेके जाता हूँ। 1.060 हुआ है, तो ये टेबल में ले लेता हूँ वैल्यू ना। आपको ऑब्जर्व दिख रहा होगा 1.060 पे अभी आपको कितना मिल रहा है, 8 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है। फिर वेरी करूंगा, अब आप इधर पे कर सकते हो, 1 के बाद 2 कर सकते हो। सो 2.060 पे कितना आया है, 9.868 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 5 मिली एम्पियर करता हूँ, 5 मिली एम्पियर पे 10.19, सेवन वोल्ट पे 10.19, मतलब अब आपका आउटपुट वोल्टेज 10 पे देखो कांस्टेंट हो गया है। तो मैंने आपको बोला था अगर इनपुट करंट आप 10 मिली एम्पियर का दोगे तो आउटपुट करंट भी आपको 10 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट मिलेगा। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है कि क्या होता है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको आउटपुट करंट जो है वो इनपुट करंट के हिसाब से ही आएगा। तो इनपुट करंट आपने 10 मिली एम्पियर दिया था, तो आउटपुट करंट भी आपको कितने पे मिल रहा है, 10 मिली एम्पियर पे मिल रहा है। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, बीटा की होने की वजह से एम्पलीफिकेशन होता था और आपको आउटपुट में ज्यादा मिलता था इधर पे। तो यहाँ पे इतना एम्पलीफिकेशन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, प्री एम्पलीफायर बोलते हैं, जो एम्पलीफायर के पहले यूज किया जाता है। एम्पलीफायर के क्या पहले यूज किया जाता है, तो एम्पलीफायर के पहले वाला जो ड्राइव करने के लिए जो यूज होता है वो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। तो आप इसका ग्राफ भी देखेंगे तो आपको ग्राफ में भी समझ में आएगा। तो ग्राफ में कुछ इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व होगा। जो आप पहले की बात कर रहे थे, तो जो हिसाब से आप पहले इधर पे दिए थे 1 मिली एम्पियर के हिसाब से जो रीडिंग थी वो थी। अब आपने 10 मिली एम्पियर का किया तो 10 मिली एम्पियर के हिसाब से वो 10 मिली एम्पियर के कांस्टेंट रेंज में। या आपको जो रीडिंग है वो किसकी है, 1 मिली एम्पियर वाले की है। इनपुट इमीटर करंट 1 मिली एम्पियर वाला है, और ये आउटपुट जो करंट है आपको जो दिख रहा है ये कितने के लिए, 10 मिली एम्पियर के लिए। तो इनपुट करंट आपने हाई 10 मिली एम्पियर का किया तो ये 10 मिली एम्पियर के रेंज में जाके कांस्टेंट होता है, और ये 1 मिली एम्पियर का है तो 1 मिली एम्पियर के हिसाब से इधर पे दिया हुआ। तो ऑल ऑफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस चेंज, आपको ये चेंज समझ में आ रहा है। तो जो मैनुअल में आपको जो दिया होता ग्राफ, तो ग्राफ में इसी तरीके से दिया हुआ है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको कौन सी चीज को कांस्टेंट रख के वेरी करना है, इनपुट इमीटर करंट को कांस्टेंट रख के आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट रीडिंग नोट डाउन करना है। तो आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, अब जब आपने जो भी रखे हो, जो वैल्यू रेंज में रखे हो, तो इमीटर करंट आपने 10 मिली एम्पियर के दिए थे इनपुट में, तो आउटपुट में कलेक्टर करंट भी आपको कितना का मिल रहा है, 10 मिली एम्पियर का। इसी तरीके से अगर 50 करूंगा तो 50 मिली एम्पियर के रेंज में कांस्टेंट मिलेगा। तो ये था आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये दो प्लॉट में करने बोला था, एक वीसीबी सॉरी 0 मिली एम्पियर के लिए बोला था, तो हम लोगों ने 0.1 मिली एम्पियर पे किए, और फिर इसके बाद हम सॉरी 1 मिली एम्पियर पे किए, और फिर इसके बाद में कितने पे किए, 10 मिली एम्पियर पे किए। यहाँ पे भी वही चीज पूछा हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है इसका, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, और करंट एम्पलीफिकेशन अल्फा कितना है। तो करंट एम्पलीफिकेशन अल्फा आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 के बराबर ही मिलेगा, 0.991 के बराबर मिलेगा, क्योंकि जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट भी मिल रहा है इधर पे। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, इनपुट 10 मिली एम्पियर पे आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, 10.19 मिली एम्पियर मिल रहा है। तो समथिंग इन द रेंज ऑफ 1 ओनली, 1.1 कुछ मिलेगा आपको। अल्फा हमेशा, अल्फा की वैल्यू कितनी रहती है, हमेशा 1। तो देखो मैंने आपको जो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, न्यूमेरिकल दिया था, जिसमें अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो वहां पे भी देखो आपको अल्फा कितना मिला था, 0.99 मिला था। तो अल्फा यानी गेन उसका हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है।
अल्फा जो है करंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वैल्यू हमेशा नियर टू द 1 होती है, इसलिए जो आप इनपुट में जो करंट देते हो वही सेम आपको आउटपुट करंट मिलता है, यानी उसमें एम्पलीफिकेशन इतना नहीं मिलेगा। वॉट एवर द इनपुट यू आर गिविंग एट दैट आउटपुट, जो इनपुट दे रहे हो वही एक्जैक्टली आपको आउटपुट में मिलेगा। एम्पलीफिकेशन आपको किस में मिलता है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, वहां पे गेन की वैल्यू हाई होती है, गेन उसका हाई होता है। तो गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज लेस एज कंपेयर टू गेन ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुई है। तो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो इतना अच्छा हमको नहीं समझ में आया, लेकिन ये सिमुलेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अब हम लोग को यहाँ पे प्रॉपरली अंडरस्टूड हुआ, समझ में आया। हमने इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी ऑब्जर्व किए, लेकिन हमको कोई नो चेंज मिला। आउटपुट का वोल्टेज चेंज करके हमको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं मिला। हालांकि हमने थ्योरी में पढ़ चुके कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या इफेक्ट होना चाहिए, अर्ली इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो इमीटर करंट की वैल्यू जल्दी मिलना चाहिए। तो वो सिमुलेशन पार्ट में हम लोग को वो चीज़ नजर नहीं आई, बट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को प्रॉपरली अंडरस्टूड हुआ, समझ में आया। जो हिसाब से आप दे रहे हो इनपुट, वही हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है। इसका गेन नियर टू द वैल्यू ऑफ कितना आ रहा है? 1 के वैल्यू के रेंज में आ रहा है। तो ये दो चीज आपको इधर पे लिखने के लिए बोला है, तीन चीज लिखने के बोला है। इनपुट रेजिस्टेंस बोला है, आउटपुट रेजिस्टेंस बोला है, और अल्फा बोला है। तो इनपुट रेजिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगा? इनपुट वोल्टेज वर्सेस अपॉन इनपुट करंट करके आपको क्या मिलेगा? इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। आउटपुट रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? आपको आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट करेंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। और अल्फा जो है वो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, जो आप वैल्यू दे रहे हो इनपुट में वही सेम आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो अल्फा इज नियर टू द 1 वैल्यू। ये तीन चीज आपको इधर पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है आपको लिखने के लिए, और रिजल्ट में वही तीनों की वैल्यू लिखना था इसमें। ये प्रैक्टिकल में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट है तो पूछो। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? Nobody. Okay, thank you all of you for listening, joining, understanding. Thank you very much.